Hi friends, how are you all? Today we will discuss the next card in the readings of the tarot card, which is the card number 5. The name of this card is the Hermit card. If we see the readings and analysis of this card and you're doing a reading of somebody and this card comes, then 100% it's a yes card. Because the reason is if we can see this card, there is all types of positive colors. We can see the red color, the white color, the light yellow color. So all these are good and very positive colors in tarot reading. Now if we go through towards the explanation of this card, you can see that there is a man. He's sitting on a chair and he's wearing a red color robe, and he's having a white color band around the robe. So if you see carefully, on this white band there are certain cross signs which are there. That means that this person is a very spiritual person. He is very intelligent person, and he is a more religious type of person. So this could be possible that this person he's a priest, or he's a teacher, or he's an advisor, or he's a consultant, or he's working as a lawyer. Okay. And if you see these two person who's standing in front of him, and they are also wearing the gown in which there are design of the flowers. So this also reflects that it's a prosperous, it reflects the prosperity, it reflects the positivity. So these two persons are seeking the advice, and they are listening to this person very carefully. So whenever this card is coming in your tarot reading, it means that it is more or less, this card is not reflected to anybody's personality. This card is more reflected towards your you want to know some answer to a query. Suppose there is certain type of query in your mind and you want the solution of this query. So it is more like a guidance card. So guidance card means that it is going to guide you. So the guidance card, the meaning of this card is that you need to look forward for somebody who might be a good teacher, who might be a good advisor, who might be a good consultant, or maybe he is working as a good lawyer, to seek advice. And also somebody who is very spiritual nature person. So like we have discussed earlier, that in the card, the Emperor card and the Empress card, the Empress card was more related to the motherly nature of a person, like a person who is more mother-like, and she is more emotional, and she is having more feminine quality, and she takes care of her children just like a mother take care of her children, you know. And the Emperor was more of a fatherly type, like he was more like a father figure. In that card we have told you that you have to take the advice of somebody who might be a father, or who might be somebody of a father figure. But over here, the guidance of this card is that if you are stuck, or you want the solution of any problem in your life, then you have to look forward to somebody who would be a good teacher, who can be a good advisor, or he's working as a lawyer. So this person will able to help you out, to give you the solution of your problem. And definitely this is a yes card. And it also reflects that if you yourself are not able to decide on something, and you are feeling very stuck in some situation, then it is always advisable to take an advice. But also it does not mean that you have to blindly follow the advice. You also have to apply your mind as well before you take any action. But yes, overall this is true that if you take somebody's advice, it is definitely going to help you in the long run. And don't take any rash decision, and think logically before you come to any solutions. Okay. And overall, if we see these two keys, now keys can be connected to the key of success. It can mean to new beginnings, or new openings, or new opportunities. And also this also reflects a marriage card. Like suppose you are not a marriageable age, and you want to know the answer to towards your marriage.
then if this card is coming in the reading, that means there is very likely chance that you're about to get married to somebody very soon, or someone in your family is about to get married. So this is also a good ceremony and a good proposal card, right? And the thing is that this is also the card of the wisdom. That means you have to be very wise. You have to be very wise before you take any decision, or you take any kind of consultancy, or you're going to take any step. It could be that you're planning to get married to somebody, or it could be that you're planning to do accept some proposals. So you have to be very, very careful. And secondly, this card also means more towards the public dealing. That means this person with maybe about whom you're talking, or maybe for yourself, if you want to know the advice for this, then it means that you have to be little bit social. You have to socialize, because sometimes what happens when we socialize a lot and we interact with other people, so we are able to find the solution to our problems. So this card means that if you will be social, and if you will be able to deal more in publicly, and you can discuss your things, and you can discuss among your friends or some teacher or some mentor, then it will help you. Because sometimes some people are having a personality that they are not comfortable to discuss their problems with others. They are not comfortable to tell their issues with others. So this card is a guidance that you have to be now social. You have to be very interactive, and you need to discuss with someone. Okay. And once you will take an advice from somebody, you will have the 100% solution to your problem, and it will help you in the long run. Because the advice of this card is that don't keep your problems only to yourself only. Discuss among with people, but not like randomly with anybody, but yes, somebody who is very spiritual nature, or somebody who is your teacher, or somebody who is able to guide you well. So you need to take the advice from such kind of person. But before taking the advice, you have to judge that person very thoroughly. Now over here we can see that this hand of this person is towards the heaven. That means this person, it could be, as I told you, he could be a priest, he could be a teacher, and he could be a lawyer also as well. Because if you see the way he's sitting, it looks like that he's like a king who's sitting, and he's like a judge who's sitting, and two advocates are standing in front of them, and they are trying to portray their case. They're trying to portray their views, and then he will decide, and he will judge, and he will give the decision. So something of that kind is there, that the person who is very intelligent, and he's very spiritual nature, and the red color also shows that he's full of energy. Over here we will not say that he's a very aggressive person, because though he's spiritual, so he cannot be an aggressive person. He's not aggressive at all. And the crown on his head reflects that yes, he has all the resources, he has the abundance, he has the authority, he has the people who are working under him, and they really listen to him, they obey him. So his personality is such that he could be a judge, he could be somebody who is the head of the family. This we can connect with the head of the family also. It could be he's a grandmother, or a grandfather, or somebody who is head of the family, or father or a mother who is the head of the family. So they help you to take the decision. So that also means that you need to take the advice from some elderly person, or somebody who is also having an authoritative nature, and will be able to guide you really well. Okay, now coming to further explanation, there are two types of pillars. So these pillars are what? These pillars are just like a support. It's like a support system. That means this person is having all types of support. So if you will listen to this person, if you will take guidance from this person, simultaneously you will also have support from everyone. Okay, now as a health point of view, if somebody is facing some health issues, and this type of card is coming, that means you need to go for a complete consultancy. It can also mean that you need to get some of your blood test and health checkup done, so that you can get the consultancy, and when the reports will come, then you will get your health issues resolved.
Okay, so this is more about taking advice and more about consulting somebody for your problems. Now, guys, if you have liked this video, do like, share, and subscribe my videos, because if you will like my videos and if you will share and subscribe, it will make me feel more motivated to bring more videos to you in future. So I hope you have liked this video. Now I will also do the analysis and explanation of this card in Hindi language. Now जैसे कि हम देख सकते हैं, ये टैरो कार्ड का 5th नंबर कार्ड है. इस कार्ड का नाम द हर्पेंट है. इस कार्ड में जैसे आप देख सकते हो कि एक आदमी बैठा हुआ है और उसके सामने 2 लोग खड़े हैं जो उसकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं. अगर हम इसकी ड्रेस को एनालाइज करें तो इस बंदे ने एक रेड कलर का गाउन पहना हुआ है और उसके गाउन के आसपास एक वाइट कलर का एक रिबन है या एक रोप या एक आप कह सकते हो कि एक डिज़ाइन बना हुआ है. इसके ऊपर क्रॉस के साइन बने हैं. क्रॉस के साइन मतलब कि ये है कि ये आदमी बहुत ही रिलीजियस आदमी है, बहुत ही स्पिरिचुअल आदमी है, ये बहुत पाठ पूजा करने वाला आदमी है. और इसके सामने 2 लोग खड़े हैं, वो इसकी बात को सुनते हैं और बहुत ध्यान से इसकी बात को अटेंशन दे रहे हैं. अगर आप किसी की रीडिंग कर रहे हो और उसका ये कार्ड आता है रीडिंग में, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है. आपको एक ऐसे आदमी से एडवाइस लेनी चाहिए जो स्पिरिचुअल नेचर का है, जो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल माइंड का है, जो बहुत ज़्यादा पाठ पूजा करता है. और हो सकता है कि ये आदमी, ज़रूरी नहीं है कि ये कोई मंदिर का पुजारी हो, ये भी हो सकता है कि वो आपका टीचर भी हो सकता है, आपका एडवाइज़र भी हो सकता है, आपका डॉक्टर भी हो सकता है, कंसल्टेंट भी हो सकता है, लॉयर भी हो सकता है. तो बेसिकली ऐसा आदमी आपको गाइड करेगा. तो बेसिकली अगर इसमें रीडिंग में कभी भी ये कार्ड दिखता है तो इसका मतलब ये है कि आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है. जैसे कि हमने पुराने कार्ड्स में डिस्कस किया था, जो एम्प्रेस थी. एम्प्रेस क्या थी? एम्प्रेस में सब मदरली क्वालिटीज़ थी कि वो एज अ मदर, कोई आपकी मदर है या आपकी कोई मदर लाइक है, मतलब कि जिसको आप अपनी माँ बराबर समझते हो, आप उससे एडवाइस ले सकते हो. और एम्परर में क्या था? आपके फादर हो सकते हैं या कोई फादर लाइक फिगर हो सकते हैं जिनसे आप एडवाइस ले सकते हो. इसमें हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि ये कोई आपका टीचर हो सकता है, आपका गुरु हो सकता है, लॉयर हो सकता है, कोई एडवाइज़र हो सकता है, या कोई आपका हेड ऑफ द फैमिली भी हो सकता है जिसकी सब सुनते हैं, जिसकी बात चलती है और सब इसकी बात को ओबे करते हैं. ऐसे आदमी से अगर आप एडवाइस लेंगे, ऐसे आदमी से अगर आप सलाह लेंगे तो 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है कि आपको 100% उस चीज़ को आंख मूंद के नहीं मानना है. आपको अपना माइंड भी अप्लाई करना है. और दूसरा, इसके लिए एक गाइडेंस और भी है. जैसे कि अगर ये स्पिरिचुअल आदमी है और ये आपका कार्ड आ रहा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर आप कोई प्रॉब्लम्स में हैं, अगर आपकी कोई लाइफ की ऐसी सिचुएशन हो गई है जिसमें आप स्टक हो गए हो और आपको गाइडेंस चाहिए, तो इसका एक ये भी एक बनता है कि इट इज़ द टाइम टू बी वेरी स्पिरिचुअल. यानी कि यही एक टाइम है कि आपको पूरी तरीके से 100% होके अपने आप को परमात्मा को समर्पित करना है. आपको अपना ध्यान पाठ पूजा में लगाना है, भक्ति में लगाना है. बिकॉज अगर आप स्पिरिचुअल हो जाओगे और पाठ पूजा में अपना मन लगाओगे तो 100% आपकी हर एक प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिलेगा. तो इस कार्ड को हम किसी की पर्सनालिटी से नहीं जोड़ते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस कार्ड्स को पर्सनालिटी से जोड़ा है. इस कार्ड को हम मोर एज अ गाइडेंस कार्ड कहेंगे कि ये आपको एक गाइडेंस की तरह आप इसको यूज़ करिए. ये आपको गाइड करेगा, ये आपको हर एक प्रॉब्लम में हर चैलेंज को फेस करने के लिए हेल्प करेगा. ना क्या होता है कि जब हम पाठ करने लगते हैं, पूजा करने लगते हैं, स्पिरिचुअल हो जाते हैं, तो अपने आप हमारी इनर जो एनर्जीज़ हैं, जो हमारी अंदर की जो इंट्यूशन पावर है वो स्ट्रांग हो जाती है और अपने आप खुद ब खुद हमें लगने लगता है कि हमें हर एक बात का जवाब खुद ब खुद मिलने लगा है. तो यही एक कार्ड है जो आपको बताता है कि आपको 100% अपनी सब प्रॉब्लम्स को परमात्मा पे छोड़ देना है और आपको 100% सिर्फ
प्रेयर करना है ताकि आपकी हर एक चीज़ का सॉल्यूशन जल्दी आपको मिल जाए। दूसरा, जैसे ये आदमी बात कर रहा है और 2 लोग इसको सुन रहे हैं, इसका मतलब ये भी है कि ये एक आदमी है जो पब्लिक डीलिंग में बहुत एक्सपर्ट है। यानी कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा सोशलाइज भी करिए। अगर आपकी फ्रेंड्स नहीं हैं, आप ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हो, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते हो, तो ये टाइम है कि आपको थोड़ा सा इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि अगर हम किसी और से बात करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट हो सकता है कोई आदमी हमें किसी चीज़ से सॉल्यूशन दे दे, या कोई चीज़ हमें ऐसे सुनने में आए जो लॉन्ग रन में हमारे को हेल्पफुल हो। तो इस कार्ड का ये मतलब भी है कि आपको दिस इज़ द राइट टाइम टू बी वेरी वेरी सोशलाइज, यू नीड टू सोशलाइज नाउ। क्योंकि क्या होगा कि जब आप सोशलाइज करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी, आपको अवेयरनेस भी पता चलेगी, और पब्लिक डीलिंग करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर आप बनोगे। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी कोई चीज़ें हमें यहाँ वहाँ से लोगों से सुन के भी चीज़ें पता चलती हैं, सॉल्यूशन पता चलता है, हमारी नॉलेज बढ़ती है, हमें 10 चीज़ें और समझ में आने लगती हैं, तो हम एक बेटर डिसीजन ले पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिससे बात कर रहे हो आप उसी के ऊपर रिलाई करोगे और उसी की बात को सुनोगे, बट हाँ ये हो सकता है कि आपको बात करने से बहुत सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होगी, आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, और हो सकता है कि थोड़े टाइम में आप खुद ब खुद अपनी प्रॉब्लम को खुद से ही सॉल्व कर लो। सो ओवरऑल ये कार्ड एक पब्लिक डीलिंग कार्ड भी है, ये कार्ड एक कंसल्टेंट का कार्ड भी है, एडवाइज़र का कार्ड भी है। अगर अब हम जॉब के पर्सपेक्टिव से देखें तो मान लीजिए आप कहीं पे टीचिंग का जॉब करते हो, एडवाइज़र हो, कंसल्टेंट हो, लॉयर हो, या जॉब के लिए जाना चाहते हो, तो भी हो सकता है कि आपको सक्सेस मिल जाए। और ये भी हो सकता है कि अगर आप कोई काम करना चाहते हो, जैसे आप किसी से मैरिज करना चाहते हो या कोई जॉब लेना चाहते हो, तो आप किसी ऐसे आदमी से एडवाइस ले लो जो आप, हो सकता है जो हेड ऑफ़ द फैमिली हो, या कोई ऐसा आदमी हो जिसकी सब लोग सुनते हों, जो बहुत अच्छी एडवाइस दे सकता है। तो ओवरऑल ये ज़्यादातर यूज़ होता है एडवाइस के लिए, कि आपको एडवाइस लेने की ज़रूरत है, आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत है। दूसरा, खुद आपको अंदर भी आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। और जैसे कि इस कार्ड में आप ये 2 चाबियाँ देख रहे हो, दिस इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्टिव ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस। अगर ये कोई कार्ड आपकी रीडिंग में, किसी क्लाइंट की रीडिंग में आ जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस क्लाइंट की या तो बहुत जल्दी शादी होने वाली है, या उसकी फैमिली में किसी की मैरिज होने वाली है। तो ये मैरिज को भी रिफ्लेक्ट करता है कि आपको कोई मैरिज की न्यूज़ भी मिल सकती है, राइट। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपने क्लाइंट को यही बोलना है कि आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत जल्दी मिलेगा, बट आपको थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रह के चलना है, ठीक है। आपको थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं होना है कि आप मतलब बहुत ज़्यादा प्राउड होके चले, या बहुत ज़्यादा ईगो के साथ चले, या बहुत ज़्यादा एग्रेशन के साथ चले। दो इसका कलर गाउन का रेड है, लेकिन यहाँ पे ये रेड एग्रेशन में हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें वाइट भी आ रहा है और वाइट के ऊपर क्रॉस भी आ रहा है, तो वो स्पिरिचुअलिटी को दिखा रहा है और गुड अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज को दिखा रहा है। तो दैट मीन्स इस कार्ड की एडवाइस ये भी है कि आपको थोड़ा सा डाउन टू अर्थ होना पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर आप अपने बारे में ज़्यादा फ्लॉन्ट मत करिए, ज़्यादा लोगों को अपने बारे में ज़्यादा चीज़ें ऐसे मत बताइए, ज़्यादा शो ऑफ मत कीजिए, शोबाजी मत कीजिए। थोड़ा सा डाउन टू अर्थ और थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाइए। अगर आप थोड़ा सा डाउन टू अर्थ और स्पिरिचुअल होके चलेंगे तो आपकी हर एक प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी, और आपको हर एक प्रॉब्लम का खुद ब खुद मतलब रिज़ल्ट मिलेगा। और थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए कि आप अपने में मना रहे हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद में ही रहते हैं, ज़्यादा किसी से इंटरेक्ट करना, बात करना पसंद नहीं करते हैं। उनको लगता है कि नहीं ये सब बेकार लोग हैं, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ऐसे नहीं होना है। डाउन टू अर्थ होने का मतलब ये है कि थोड़ा सा आपको लोगों से बातचीत करने का, थोड़ा सा मिलने जुलने का, थोड़ा सोशलाइज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप थोड़ा सोशलाइज़ करोगे, लोगों से मिलोगे, तो खुद ब खुद आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का
सोल्यूशन भी मिलेगा। तो डेफिनेटली ये चीज़ लॉन्ग रन में आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर आपका नेचर, मान लीजिए आपके सामने एक क्लाइंट बैठा है, तो आप अगर ये कार्ड आता है तो आप सबसे पहले उससे पूछिएगा कि तुम्हारे भैया फ्रेंड्स कितने हैं, तुम कितनी बार लोगों से मिलते हो, तुम कितना बात करते हो, तुम कितना अपने आप को एक्सप्रेस करते हो। तो वो खुद ब खुद बोल देगा। 90% लोग यही बोलेंगे कि नहीं, मुझे ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स तो नहीं हैं, मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करती हूँ या करता हूँ, या मैं थोड़ी सी रिजर्व नेचर की हूँ। और हो सकता है कोई आपको ऐसा भी दिखे जो कहे कि नहीं, मैं ज़्यादा स्पिरिचुअल तो नहीं हूँ, ठीक है, कभी कभार मंदिर चली जाती हूँ, कभी कभार पाठ पूजा कर लेते हैं, तो अगर ये सब चीज़ें, अगर कोई क्लाइंट आपको बोल रहा है, तो कार्ड रीडिंग से पहले आप ये चीज़ें उनसे पूछिए। फिर आप उनको ये बताएंगे कि इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा फ्रेंड्स बनाने की ज़रूरत है, थोड़ा सोशलाइज करने की ज़रूरत है, लोगों से एडवाइस लेने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा आपको अपनी ईगो को साइड में रखकर हल्का सा डाउन टू अर्थ होने की ज़रूरत है, लोगों के साथ मिक्सअप होने की ज़रूरत है, अपनी पब्लिक डीलिंग को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। क्योंकि जितना आप पब्लिक डीलिंग करोगे, जितना आप सोशलाइज करोगे, जितना आप पाठ पूजा करोगे, स्पिरिचुअल हो जाओगे, तो खुद ब खुद आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको ऑटोमेटिकली ही मिल जाएगा, और आप इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक मतलब प्रॉब्लम्स में अपने आप को नहीं देखोगे। दूसरी बात है, अगर कोई आता है, कोई लड़की आती है, तो आप उससे पूछ सकते हो कि अगर उसकी मैरिज होने वाली है या मैरिज करना चाहती है, या वो कंफ्यूज्ड है कि उसको उस पर्सन से मैरिज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो आप उसको स्ट्रेट अवे बोल दो कि यस, आपकी मैरिज तो कार्ड्स पर है, लेकिन आपको पूरा पूरा किसी अच्छे मैच्योर या इंटेलिजेंट या गुड पर्सन से, हो सकता है वो आपकी फैमिली मेम्बर हो, या आपका हेड ऑफ़ द फैमिली हो, या कोई आपकी मदर हो, आपकी ग्रैंड मदर हो, या कोई ऐसा हो आपकी फैमिली में जिसकी सब सुनते हो, आपको उनसे एडवाइस लेनी चाहिए। खुद ब खुद आपको नहीं डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ये कार्ड ज़्यादातर अरेंज मैरिजेस के लिए यूज़ होता है, ये लव मैरिज का कार्ड नहीं है। दैट मीन्स इसमें ये भी आप एडवाइस कर सकते हो कि अगर आप मैरिज कर रहे हो, तो आप उसी बंदे से या तो मैरिज करो जो आपकी फैमिली को भी पसंद हो, जो आपके पेरेंट्स को भी पसंद हो, जो पूरी एडवाइस और गाइडेंस के साथ आपको शादी करी जाए, या आपको वहाँ मैरिज करनी चाहिए जहाँ आपकी फैमिली आपको कहती है। क्योंकि इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपका अरेंज मैरिज होने के चांसेस ज़्यादा है, लव मैरिज होने के चांसेस बहुत कम है। अगर आपको कोई बहुत पसंद है और आप लव मैरिज ही करना चाहते हो, देन इट इज़ एडवाइजेबल कि आप एक पूरी एडवाइस के साथ, एक अच्छी गाइडेंस के साथ आगे बढ़ो, और उसमें अपनी फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करो। आपको खुद ब खुद अंदर ही अंदर अपनी चीज़ें नहीं रखनी है, आपको अपनी चीज़ें फैमिली के साथ डिस्कस करनी है, ओपन होके फ्रैंक होके बात करनी है। दूसरा, साइड बाय साइड आपको थोड़ा सा भगवान पे भी विश्वास करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, ताकि आप जो काम करने जा रहे हो उसमें आपको 100% सफलता मिले। ठीक है। अभी इस कार्ड में जैसे हम येलो कलर, रेड कलर, वाइट कलर देखते हैं, तो ये कार्ड एक 100% येस कार्ड है। ये प्योरिटी का कार्ड है। जिससे मैंने आपको बताया कि इस कार्ड का एनालिसिस ये है कि ये ऐसा गाइडेंस का कार्ड यूज़ होता है, यानी कि जो भी क्लाइंट आपके पास आ रहा है, उसकी जो प्रॉब्लम है, आपको उसको ये बताना है कि ये ऐसा गाइडेंस कार्ड है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। आप खुद ब खुद कोई स्टेप मत लीजिए, आप गाइडेंस लीजिए। आप अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर से, अपने कोई जो बहुत ही स्पिरिचुअल लोग हैं, हो सकता है कि उस घर में वो एस्ट्रोलॉजी को बहुत मानते हैं, तो प्रीस्ट वगैरह के पास जाते हैं, या पंडित से कंसल्ट करते हैं, या एस्ट्रोलॉजी में अगर बिलीव करते हैं, तो आपको ऐसे कुछ एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस लेनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपकी फैमिली में कोई है ऐसा जो आपको बात समझा सकता है, या कोई बहुत है जो रिलीजियस है, स्पिरिचुअल नेचर का है, आपसे बात कर सकते हो, आप उनसे एडवाइस ले सकते हो। सो बेसिकली जितना आप हो सके एक एडवाइस लेने की कोशिश करो, और खुद ब खुद आपको बहुत ज़्यादा अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। आपको डाउन टू अर्थ होना पड़ेगा, आपको लोगों के साथ इंटरैक्ट करना पड़ेगा, पब्लिक डीलिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आपको कुछ अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा। अगर ये कार्ड, मान लीजिए आप जॉब के लिए जा रहे हो और ये कार्ड आपके बॉस के लिए टाइम पे आ रहा है, तो इसका मतलब यही हुआ कि हाँ, आप जहाँ ज्वाइन करने जा रहे हो, आपका बॉस एक बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है, वो बहुत रिलीजियस पर्सन है, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। और जैसे ये दो लोग इसकी बात सुन रहे हैं,
वैसे ही इसकी टीम भी इसकी बात सुनती है, इसको ओबे करती है, इसका ऑर्डर्स मानते हैं, और इसके पास नॉलेज भी है, विजडम भी है, पावर भी है। ये बहुत पावरफुल आदमी है, क्योंकि इसके जब ये बात करता है तो सब लोग उसको सुनते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं। हो सकता है ये किसी कंपनी का बॉस हो, या किसी कंपनी का सीईओ हो, या कहीं का ये कोर्ट का लॉयर हो, या कोई टीचर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो 100% लोग इसकी बात सुनते हैं और इसको मानते भी हैं। तो इसका नेचर ऐसा है कि ये बहुत ही अच्छी सोल है, क्योंकि ये पाठ पूजा करता है, तो ये स्पिरिचुअल तो है ही है, रिलीजियस भी है, और इसके पास बहुत नॉलेज भी है। और ये जो रेड कलर है इसके गाउन में, वो डोमिनेंस को नहीं दिखा रहा है, वो एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज को दिखा रहा है। और पॉजिटिव एनर्जी सिर्फ डोमिनेटिंग नेचर करके नहीं होता, कि एग्रेशन से नहीं आता। पॉजिटिव एनर्जीज कभी कभी स्पिरिचुअलिटी से या स्पिरिचुअल होने से भी आ जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा पाठ पूजा करने लगते हो या बहुत स्पिरिचुअल हो जाते हो, तो कभी कभी अंदर आपके बहुत अच्छी अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज भी आ जाती हैं। सो ओवरऑल ये यस कार्ड है, ये गाइडेंस का कार्ड है। अगर आपके जॉब में आप जा रहे हो तो ये यस कार्ड है, आपको वो जॉब ले लेना चाहिए। अगर आप अपनी हेल्थ के लिए कार्ड देख रहे हो, तो हाँ, हेल्थ में हम ये कहेंगे कि आपको इस टाइम कि आप इस टाइम पे आप कोई अपने टेस्ट वगैरह करा लो। इतना ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम है बॉडी में तो आप टेस्ट कराओगे, बट जनरल ओवरऑल आपको एक मेडिकल चेकअप की ज़रूरत है, आपको एक डॉक्टरी एडवाइस की ज़रूरत है। अगर आप अपना शुगर, ब्लड लेवल, शुगर लेवल, बीपी वगैरह चेक करा लेते हो, अगर मेडिकल्स करा लेते हो, तो आपको एक कंसल्टेंसी, एक एडवाइस मिल जाएगी, जो फ्यूचर में आपको एक तरीके से हेल्प करेगी कि आप आगे जाके कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना फेस करो। और दूसरा, अगर आपको कोई भी दिक्कत है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कोशिश करो कि आप 100% एडवाइस लो, और बातचीत करके एडवाइस लेकर ही डिसीजन लो, और खुद ब खुद कोई अपने आप से कोई काम मत करो जब तक आपको 100% श्योरिटी ना हो। सो फ्रेंड्स, आई होप मैंने जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया है इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, मैं और मोटिवेटेड फील करूँगी, और मैं फ्यूचर में और वीडियोस पोस्ट करूँगी। आई होप आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।